Today, we have somebody very special with us. We have somebody really special with us. Saurabh, are you here with us? Yes, sir. Yes, Can you hear Saurabh. me? Yeah. So, Hi, sir. yes, I can hear you. So, ladies and gentlemen, can we all unmute ourselves and welcome the one and only Saurabh? Hi, Hi, Saurabh. good morning, Saurabh. Hi, welcome. Hi, sir. Hi, Saurabh. Saurabh. Welcome to the class. Welcome, Saurabh. Hi, Saurabh. Hi. Welcome. Hi, Saurabh. Hi, Saurabh. Hi, Saurabh. Welcome, Saurabh bhai. Hello, Saurabh. Hello, everyone. Hello, everyone. Very nice, very nice. Saurabh, you'll have to unmute yourself once again. Yeah. Yeah. Great to be here. Great to be here. Yeah. Yes, Saurabh. So why don't you share your experience in So, guys, I'm Saurav Bafna. I'm into real estate. I'm from Calcutta, and I have two sons, wife, stay in a joint family. So, yeah, that's a brief about me. So I joined BMP in 2018. We completed in 2019. And it's been a great journey. I mean, it's a life-changing moment when I decided that, okay, I will do this course. Frankly speaking, somebody told me, so I'll just briefly tell you how it happened. Somebody told me that there is someone called Rahul Jain and he takes up motivational classes. That's how I was, told that he takes motivational classes. And because I'm a part of Roundtable India, so one of my relatives suggested me that why didn't you get his workshop done here in Calcutta? I said, sir, बहुत सारे motivational speakers हैं. I mean, ये नहीं चलने वाला है. Then somehow, some way, someone who did the course, he suggested me, he explained me what it is all about. I flew to Delhi to do this one-day workshop. Then obviously everything is the past after that. 1 day, then 4 day, then 8 months. At our time, it was 8 months. Now I suppose it's 9 months now. So your time it was 4 workshops live. So how did you, because पहले Zoom नहीं होता था. Sir, आपका खराब कर दूंगा. I mean, I swear by the live workshops. I mean, there's no doubt about it. Given a chance, I will do it again. I mean, it's always a pleasure to come to any of the workshops. Alumni also, I mean, trying to come, but somehow I'm missing it. But live workshops has got no comparison with online workshops. Sorry, And sir, but that's how it is. The 32, every week you flew down to Delhi. Every week I flew down to Delhi. Every morning I used to fly from Calcutta to Delhi. Every night I used to come back because at that time was too short. There was a lot of implementation needs to be done, so I couldn't have afford to stay one night extra in Delhi before or after. Even though Delhi is like my second home, I was in Delhi for good, I think 4 years or something. So I could have easily stayed back, but implementation was just way too much to waste even a single morning, I would say. Yeah. So what is your business like? So I'm into real estate. I develop residential properties primarily in and around Calcutta itself. So it's a family business. We are also into printing business, which my brother takes care of. I joined business in 2009, 2010. Before that, I was professionally working for someone in Delhi only. I was in a totally different in sector altogether. I was working for in a corporate finance strategy group. So, but then things changed and I came back to Calcutta and I joined this business. I had absolutely no idea about real estate, no idea about how it works, but we had some family purchased land previously where it all started. It was a kind of a part-time business for us, which my brother used to take care of. I joined in 2010 and I started doing this in a full-fledged manner, and we started this whole new vertical in a proper structured manner in 2010. So how was life like before BMP? What were the challenges you had? So we spoke yesterday, sir, and I told you that I'll try to write it down, whatever, how was the life before BMP. Trust me, it's really very tough to even point out those things because
it seems like ages ago. I mean, it's just been 4 years, 3 years, 4 years, but it seems like ages ago कि अब तो याद भी नहीं आता कि उस टाइम में हम करते क्या थे. But still, I tried. So there were, it was like anyone else. I mean, I'm sure there are a lot of, I mean, I'm amazed to see 555 people, sir. But by the way, I mean, absolutely amazing to have this many participants in a workshop of 9 months. Absolutely amazing. So yeah, life was the same as must be for so many people here. Limited business. There was very, limited business because of limited mindset. कि ठीक है धीरे धीरे करेंगे ऐसा कोई, because we did not had any aim or any goal था कि भाई ये बड़ा करना है, ये करना है, वो करना है, but there was no, written down plan for it. So we used to visit site visit. I used to visit site every single day. क्योंकि यही दिमाग में था कि मेरे बिना काम नहीं चल सकता वहां पर. तो आधा दिन साइट, आधा दिन ऑफिस, रात को 8, 8:30, 9 बजे तक घर, और मंडे टू सैटरडे वर्किंग, संडे भी मौका मिल जाए तो भी वर्किंग. So that's exactly was life like. It was we were working like a machine. I mean, with no real concrete aim in front. Ki this is the reason that why we are working. But बस वो काम चले जा रहे थे, profits का कुछ पता नहीं था, कैलकुलेशन नहीं होते थे. बस जब तक वो काम चल रहा था, पैसे बच रहे थे, खर्चे निकल रहे थे, सेविंग्स हो रही थी, बट देयर वाज नो प्रॉफिट एज सच कि भाई कि इतना प्रॉफिट हमें अर्न करना है, इतना प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं. If I can point out few things which related to construction industry, a lot of people I'm sure will be from that industry, so they will be able to relate more. Construction वाला है क्या आज? Projects and constructions. Very good. Right. Excellent. तो प्रोजेक्ट्स चलते हैं हमारे, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स मैं बनाता हूँ. तो उस टाइम तक तो ये होता था कि भाई लेबर प्रॉब्लम्स है, काम डिले हो रहा है. मतलब नॉट दैट कि हमारा काम कोई मॉनिटर किया हुआ था कि इस टाइम पर कंप्लीट करना है, बस वो एक मोर और लेस टारगेट था कि 6 महीने में, 1 साल में ये वाला काम कंप्लीट हो जाना चाहिए. बट देयर वाज नो डेली तो छोड़ दीजिए सर, वीकली और मंथली इवन मॉनिटरिंग कि भाई ये काम हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ. सो लेबर प्रॉब्लम होती थी, लेबर को कैसे मैनेज करें ये नहीं आता था. ये तो इनहेरेंट प्रॉब्लम लगती थी कि भाई ये लेबर इज एन इनहेरेंट प्रॉब्लम of this industry which we really can't really fight. It always will be there. We have to live with it. Then material delivery problem hoti thi. Not that the materials were delivered and because of which the work got delayed. At lot of times and most of the times with us we face this problem कि material delivery हो गया, काम उसका 3 महीने 4 महीने बाद होना है. So it used to take up a lot of space, theft, wastage of material, damage of material, and then at the time when the execution used to happen, then वो हो सकता है कुछ part of the material were not even we will not able to find even that kind of way. So material were reordered again कि भाई काम अब डिले नहीं होना चाहिए, इसको पहले बढ़ाओ, आगे का मटेरियल जो मिलेगा उसको देख लेंगे. क्वालिटी कंट्रोल, देयर वाज नो क्वालिटी, बस जो आंख से देखते थे. आई मीन आई यूज्ड टू गो टू साइट एवरी डे. So whatever we used to see from our eyes कि okay this is the way, ये काम ठीक नहीं हुआ, ये काम ठीक हुआ, that's how quality was really monitored. Not really that we had any checklist or any sort of a format where we used to monitor quality. कुछ चीजों में था because I joined in 2010 and in 7-8 years whatever I had learned all on my own. So there was no technical background that I had. But frankly speaking, you don't need any technical background. I will come to that later. So yeah, it was a everyday work week. I mean, people at home also were aligned with it कि ये तो काम ही है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पैसे कमाना है तो मेहनत भी करनी पड़ेगी. बट ये नहीं पता था कि वो मेहनत सही चैनलाइज हो रही है कि नहीं हो रही है. We never realized it. It was only after doing this workshop that we realized that what we are doing is not the right way to do it, and we are not channelizing our efforts in the right manner. So
उस समय आप कितने प्रोजेक्ट्स हैंडल करते थे? मैं वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम सर करता था उस टाइम पे। उससे ज़्यादा हिम्मत होती नहीं थी, क्योंकि लगता था उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। अब रोज अगर मैं साइट पर जाऊंगा और ये लगेगा कि मेरे अलावा काम नहीं हो सकता है, तो क्वाइट ऑब्वियस कि एक से ज़्यादा साइट संभालना मेरे लिए उस टाइम पे प्रैक्टिकल पॉसिबल, और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो माइंडसेट ही नहीं था, वो थॉट प्रोसेस विजन ही नहीं था कि इससे ज़्यादा प्रोजेक्ट मैं, आई वॉज हैप्पी कि ठीक है एक एक प्रोजेक्ट करके करते रहेंगे, काम चलता रहेगा, एवरीथिंग इज फाइन. So that's how what the thought process was at that time. So So during the workshop, then did you, when you came to the workshop, so then during the workshop, what all did you create? sir, it was a completely different ball game altogether. Once I joined the workshop, 1 day किया, 4 day किया, 4 day के बाद में कुछ implement करने की कोशिश की, but obviously कोई खास रिजल्ट्स मिले नहीं उस टाइम पे. बट आई वाज वेरी वेरी श्योर दैट 8 months तो सर करना ही है अब. उस टाइम पे ये था ना कि सर 8-9 लाख रुपए लग गए हैं, तो अब उसका कुछ तो रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा, वेस्ट तो कर नहीं सकते अब ऐसे. बट आई मीन दोस दैट थॉट प्रोसेस यूज्ड टू गोज आउट, आई मीन इट वेंट आउट ऑफ द विंडो इन द फर्स्ट 2 months इटसेल्फ. उसके बाद वो पैसे के बारे में तो कोई सोचते ही नहीं थे. एक दो चीज सर और बताना चाहूंगा. जो प्री बीएमपी होता था, जो सेल्स होती थी हमारी, वो सिर्फ गट बेस पे होती थी, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मटेरियल, ये फ्लैट इस तरह का बिकेगा, या ये ऐसे करने से ऐसे बिकेगा, तो बस वो गट पे सारी की सारी सेल्स होती थी. वी वर फॉर्चुनेट एनफ कि ऐसा कोई सेल्स में प्रॉब्लम नहीं आया, बट वो गट पे पूरी सेल्स होती. देयर वाज नो डेटा बैक्ड, देयर वाज नो स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट कि ये किस तरह से करना है. बस प्रोजेक्ट बनाया और वो बेचना है. प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर टाइम पे ही हुए हैं, कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ है. क्यों डिले होगा सर, जब आई एम देयर डे इन डे आउट, तो डिले नहीं होता था, बट इट वाज राइट ऑन टाइम. आई मीन दैट वी वर फॉर्चुनेट एनफ. इंटरेस्ट कॉस्ट हम लोग कुछ भी कैलकुलेट नहीं करते थे कि हमारा खुद का जो कैपिटल लगा हुआ है उसमें भी इंटरेस्ट हमें विड्रॉ करना चाहिए. वी यूज्ड टू विड्रॉ सैलरीज ऑल्सो, एंड सैलरीज नॉट फॉर द sake of adjusting profits. We never used to withdraw salaries for our own purpose. वो बस वो सैलरी विड्रॉ होती थी और घूम के वापस वो बिजनेस में ही जाता था. So there was no takeout per se during the course of the project. वो at the end of the project जो profit आया, उसी में से कुछ अगर टेकआउट होता था तो वो होता था. So this was this complete scenario just before I joined BMP. Post joining BMP, sir, it completely changed. I mean, Why don't you show us some of the systems you made? yes, sir, I'll show it. So, can I share my screen? Yes, you are a co-host. Share screen नीचे है, बीच में होगा. हाँ. Yeah. Now we can see us. Okay. So I'll just start with the most basic one. Oh, sorry. Yeah. So yeah, this is my purchase FMS. Now, पहले तो we used to only work with Google Sheets. Now अब हमारे पास ERP भी है. ERP में we do the actual work. All the monitoring stuff happens in Google Sheet only. अभी फ्रंट सारा गूगल शीट ही चल रहा है. फ्रंट सारा प्रोसेस, सारा मॉनिटरिंग गूगल शीट से ही होती है सर. बैक एंड में ERP कोई चल रहा है. बैक एंड में ERP चल रहा है. ठीक है. So if I can show you this, yeah. So these are the steps that we follow in our purchase FMS. It has evolved. I mean, it's been 4 years. It gets evolved now every month, every week, maybe also. I mean, I'm not even aware of it now. But yeah. अब ये सारे systems अपने आप चल रहे हैं? ये सारे systems सर अपने आप चल रहे हैं. I have a systems team in place also. So ये सारे के सारे system purchase FMS
sales FMS, if I can show you. This is a project FMS. This is PMS. So प्रोजेक्ट का पूरा प्लानिंग, प्रोजेक्ट का पूरा काम इसी शीट पे होता है। पूरा का पूरा सर। सो प्रीवियसली क्या होता था, प्रीवियसली हम बस ये प्लान करते थे कि 6 महीने में ये काम होना चाहिए या 1 साल में ये काम कंप्लीट होना चाहिए, बट उसकी डिटेल्ड प्लानिंग, मॉनिटरिंग कुछ भी नहीं होती थी। अब जब मटेरियल खत्म हो गया साइट पे, तब मटेरियल ऑर्डर होता था, या ठीक है मटेरियल खत्म होने वाला तब पहले से ऑर्डर कर दो। दैट वाज द सिनेरियो। अभी क्या हुआ सर कि हम पूरी की पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग फ्रॉम 0 टिल द एंड, मतलब फिनिशिंग तक, कंप्लीट हैंडओवर तक, वो सारी की सारी प्लानिंग पूरी पूरी हम पहले गूगल शीट्स में ऑलरेडी हम कर देते हैं। उसके साथ साथ जैसे आपने IMS बोला था, तो हमारा IMS कोई सेपरेट नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द वर्क डन। अगर काम नहीं होगा तो हमें वो मटेरियल चाहिए ही नहीं वहां पर। तो अभी कितने दिन का मटेरियल रहता है साइट पे? तो अलग अलग सर, अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं। फॉर एग्जांपल TMT है, सो दैट वी वांट एटलीस्ट 5 to 6 days बिफोर द एक्चुअल नीड इज देयर। तो आप अगर कह रहे हो कि स्टील 5 दिन, मतलब 5 दिन का माल पड़ा होता है स्टील सिर्फ? यस यस यस, एब्सोल्युटली। 5 दिन का माल जी 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 साइट पे, जी जी। और बाकी अलग अलग है सर। सीमेंट 2 दिन आने से भी हो जाता है। मतलब सीमेंट अगर 10 तारीख को चाहिए तो 8 तारीख को सीमेंट आ गया, तो आप तो कह भी रहे हो काम कि हो जाता है। लाइक जस्ट इन टाइम चल रहा है, मतलब सीमेंट अगर चाहिए तो 2 दिन पहले सीमेंट आता है बस? जी 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 सर, जी सर। इट्स अ वेरी फास्ट साइकिल। आई मीन वी डू कास्टिंग ऑफ 1 फ्लोर एवरी 8-9 days। और मतलब अगर स्मूथली सब कुछ चलता है तो एवरी 8-9 days इज द कास्टिंग दैट वी डू। सो इट्स अ वेरी फास्ट साइकिल। इफ एक भी दिन अगर कोई भी जन अगर डिले कर देता है, सो आवर होल साइकिल गेट्स रियली हैम्पर्ड। सो इट्स अ वेरी फास्ट साइकिल। वो कंटिन्यूअसली वो होता रहता है। हर 2 दिन 4 दिन में सीमेंट आना है, हर 5 दिन में स्टील आना है, तो वो कंटिन्यूस, इट्स अ कंटिन्यूअस अफेयर। और ये सारा ऑटोमेटेड है? एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, क्योंकि सर ये ऑटोमेट अगर नहीं रहेगा, इट विल बी, आई विल बी स्टक विद दिस द होल टाइम। So everything is automated. So what I was pointing out as far as IMS is concerned, पहले कौन just करता है ऑर्डरिंग, परचेज और प्लानिंग के कितना चाहिए, कब कितना डालना है? सर 160 स्क्वायर फीट की ऑफिस थी मेरी, और टोटल मिलके हम लोग 7 या 8 लोग थे, और मतलब मैक्सिमम काम मैं ही करता था। तो मतलब परचेज भी अगर वेंडर से बात करके उसको ऑर्डर भी अगर नेगोशिएट करके ऑर्डर प्लेस करना है तो भी मेरे को ही करना है। और आज का सिनेरियो में अगर बात करूं तो वेंडर कई बार ये बोलते हैं, सर आपसे तो बात करना एक मतलब वो हो जाता है कि आपसे कैसे बात किया जाए। सो नाउ थैंकफुली व्हेन वी हैव ऑल द सिस्टम्स ऑटोमेटेड, सो आई डोंट इवन हैव टू लुक इन अ हाई वैल्यू आइटम लाइक अ TMT। लाइक कंस्ट्रक्शन में TMT इज अ वेरी हाई वैल्यू आइटम। सो तो आपको अब ये कुछ नहीं देखने की जरूरत होती, अपने आप माल की इंडेंट रेज होती है, अपने आप माल परचेज हो जाता है, अपने आप माल साइट पे पहुंच जाता है, अपने आप माल लग जाता है। हेलो सौरभ, आप म्यूट हो गए हो। सौरभ, सौरभ, सौरभ इज, आई थिंक जस्ट उसका कनेक्शन डिसरप्ट हुआ होगा। So I think he'll just be joining us back. As soon as he joins back, he will be able to put this back into place. So guys, जो भी project management में है, whether it is software, whether it is any other business, anybody in any kind of project business, कोई भी project business में होगा, so just make sure that you are listening to this, because this is very important for all project businesses, and I want you to see कि इन्होंने कैसे सिस्टम लगाए हैं। आज की तारीख में आपकी इंडेंटिंग कौन करता है कि माल कितना चाहिए?
आप लोगों की कंपनी में इंडेंटिंग कौन करता है? स्टोर्स। इंडेंटिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, स्टोर्स, आप खुद, स्टाफ, यूजर। तो अगर इंडेंटिंग ऐसे हो रही है, सही इंडेंटिंग हो रही है, गलत इंडेंटिंग हो रही है, आईएमएस कर रहा है तो बहुत बढ़िया। आप में से इज द इंडेंटिंग राइट, रॉन्ग? इज द इंडेंटिंग राइट और इज द इंडेंटिंग रॉन्ग? एक्स्ट्रा माल आके पड़ता है क्या? एक्स्ट्रा माल आके साइट पे गिरता है क्या? लेबर की प्रॉब्लम होती है? सौरभ, आर यू बैक? सौरभ, आर यू बैक? ओके। कब क्या होना है, कौन सी चीज साइट पे कब क्या होनी है, वो कौन मैनेज कर रहा है, और हुई कि नहीं वो कौन मैनेज कर रहा है? एक सेकेंड, सॉरी सौरभ, अब आप अनम्यूट कर सकते हो। Yeah. Sorry. नो I प्रॉब्लम, got disconnected. नो प्रॉब्लम, नो। So, हाँ, सो should I share my screen again? यस प्लीज। सो कैन यू जस्ट शो अस कि आपका प्रोजेक्ट कैसे चलता है? जस्ट शो अस फास्ट, प्रोजेक्ट चलता कैसे, जी सर। वो शीट कैसे चलाती है प्रोजेक्ट को? जी मैं बता रहा हूँ सर। तो सबसे एंड रिजल्ट सर है कि स्लैब कास्टिंग होना है। सो वी यूज आई जस्ट ब्रीफली वी यूज एल्यूफॉर्म शटरिंग। वो सब उसमें एक क्या? मिनट, वो सब छोड़ दो। आप ये हाँ बताइए ठीक क्या क्या, जो ये स्लैब ठीक। कास्टिंग है, इसका हाँ प्लान, कंप्लीशन डेट, एक्चुअल कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? जी। तो ये स्लैब कास्टिंग से स्टार्ट होता है बिकॉज दिस इज द रिजल्ट दैट वी वांट। अब स्लैब कास्टिंग के पीछे में मेरे को क्या क्या काम करना है? वॉल वॉल शटरिंग, वॉल टीएमटी, वॉल इलेक्ट्रिक, एसी ड्रेन पाइप, blah blah, there are n number of items here. जस्ट जो रन थ्रू स्लैब इलेक्ट्रिकल। slab electrical, slab shuttering, slab TMT, then lifting for upper floor. So this is the end, this is post casting, this is done. तो ये So ये सारी चीजें पूरी प्लान्ड होती है। सारी चीज पूरी की पूरी प्लान होती है कि किस दिन कौन सा चीज क्या काम होना है नहीं होना है। नाउ अब इससे रिलेटेड क्या होता है सर? इससे रिलेटेड जो मटेरियल मेरे को चाहिए और वो मटेरियल मेरे को कब चाहिए, वो सारा का सारा यहाँ पे ऑलरेडी मैप्ड है। तो ये एमएम के हिसाब से मैप है कि 8 mm टीएमटी सुपर स्ट्रक्चर में कितने चाहिए? यस 10 mm सो कितना चाहिए? 12 mm कितना चाहिए? 16 mm? एवरीथिंग सर, एवरीथिंग फ्रॉम से एक शटरिंग ग्रीज होती है, कोई ऑयल वॉयल जो यूज होता है वो भी टैग किया हुआ है। बाइंडिंग वायर, एक ऑयल और ग्रीस भी पूरा मैप्ड होता है और पूरा प्लान्ड होता है। पॉलिथीन शीट, नेल्स भी जो होते हैं सर, नेल्स हमारे बहुत सारे कंक्रीट नेल्स लगते हैं, वो सारा का सारा इसमें यहाँ पे ऊपर टैग जाना है, किया हुआ रहता है। मेल पे जाना, ये एक सेकंड दिखाओ जरा, थोड़ा नीचे जाओ। ये तो हो गया, ये सुपर स्ट्रक्चर, एमएम स्टोन चिप्स वगैरह। हाँ नीचे जाओ थोड़ा, स्टोन चिप्स, प्लास्टर, ये नेल, ये मतलब 1.5 इंच के नेल कितने चाहिए वो भी मैप्ड है इसमें? जी सर। मैं इसका रीजन बताता हूँ सर, ये क्यों है ये। जैसे आई वाज स्पीकिंग टू समवन व्हिच यू हैड रेफर्ड टू, आई थिंक उमंग, आई डोंट नो, समबडी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि ये सिर्फ अभी मैंने सिर्फ टीएमटी सीमेंट और इससे बड़े बड़े आइटम्स में ये लगा के रखा है उसको मॉनिटरिंग करने के लिए। सो आई एम ऑफ द व्यू, आई रियलाइज दिस ड्यूरिंग द कोर्स ओनली, ये जो बड़े आइटम्स होते हैं सर, इसको मैनेज करना बहुत इजी होता है। आई मीन लाइक इट्स लाइक अ केक वॉक। 5 दिन 7 दिन 10 दिन मेहनत करेंगे, वो पूरा पूरा मैनेजमेंट में आ जाता है। इज द स्मॉल आइटम्स विच मेक्स अ बिग डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे। 80-20 करना इट्स ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे जो छोटे छोटे आइटम्स हैं, इसको मॉनिटर नहीं करते, इसी में सबसे ज्यादा चोरी होती है, सबसे ज्यादा वेस्टेज होता है, और सबसे ज्यादा माल आप साइट पर दे के छोड़ देते हैं हम, और उसको भूल जाते हैं, और नया ऑर्डर भी हो जाता है कि वो नेल नहीं मिल रहा, छोटा सा ही तो आइटम है, नेल नहीं मिल रहा। पर इन टर्म्स ऑफ द टोटलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। ओके, So that is why we monitor each and every smallest of items. आइटम कब कब डिलीवर होगा, वो सारी चीजें पूरी मैप्ड हैं, और एक एक आइटम, एक एक नट बोल्ट
ग्रीस, ऑयल, मतलब प्लास्टिक की पन्नी, सब कुछ मैप्ड है। सब कुछ मैप्ड है सर। इसमें सिर्फ एक चीज है, बाय एनी चांस अगर मेरा कोई भी, अगर कास्टिंग कोई भी रीजन से डिले होता है, हॉलीडे हो गया, ये हो गया, वो कुछ भी हो गया, तो मेरे को सिर्फ वो कास्टिंग वाली डेट चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल इसमें Got it. We'll not get into that because let's have a look at other things also. राइट। सो दिस इज एज फार एज द IMS एंड PMS मेरा इस तरह से पूरा का पूरा काम तो करता है। इन्वेंट्री और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोनों साथ साथ चलती है। हाँ सर, इन्वेंट्री तो कुछ रहेगी नहीं ना। अगर अगर मेरा टाइम पे ऑर्डर हो रहा है और टाइम पे काम हो रहा है, देयर विल बी नो, प्रैक्टिकली नो इन्वेंट्री। और जस्ट इन केस अगर कोई साइट से अगर इंडेंट अगर आता है कि भाई आप इसको इंडेंट करिए, then what happens at that time is the PCs or the purchase people, they themselves check it whether इसके पहले वाला काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मतलब एक एक स्टेप, एक एक चीज सब कुछ चेक हो रही है। Absolutely, and it is all checked by the team now. और अब सब टीम ही देखती है, टीम ही हैंडल करती है, आपको घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। No sir, not at all. I enter only at the time when there are, you know, unreasonable delays. कोई रीजन से कोई डिले हो गया कि भाई कोई भी एक प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में बहुत सारे रोड ब्लॉक्स आते हैं कई बार, तो दैट इज द ओनली पॉइंट वेयर आई हैव टू इंटरफेयर और आई हैव टू डू व्हाटएवर टू द शीट, और आई एम आस्क्ड फॉर माय people ask for my permission to do whatever changes needed. तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरी ऐसी शीट पे चलता है ये। जी और सर। पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऐसी पूरी शीट पे चलता है, सब कुछ ऑटोमेट हो गया है। जी सर। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब जैसे ये भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, दिस इज फार मोर कॉम्प्लेक्स नाउ, फिनिशिंग का काम है ये। सो मतलब अब इसमें भी फॉर एग्जांपल आप जो डिटेलिंग देख रहे थे, इसमें देखिए सर कि ये देखा, इवन ये क्या है? अच्छा, बफर टाइम, डिलीवरी टाइम, क्वांटिटी टाइम। ये आप कह रहे हो कि डोर फ्रेम जो फ्रेम फिक्स है, तो ये फिक्सिंग के मतलब थिनर कितने फ्लोर पे लगेगा, टोटल क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ लॉट्स, बफर टाइम, डिलीवरी टाइम। तो ये डोर फ्रेम का फिक्सिंग का भी पूरा का पूरा मैप्ड है। नीचे जाना। जी सर, ये सर फिनिशिंग आइटम्स है, मैं बड़ा कर देता हूँ सॉरी इसको। ये फिनिशिंग आइटम्स हैं, तो फ्लोरिंग में कौन सी टाइल्स कितनी लगेगी और उसके उतने टाइल्स को हम, क्योंकि टाइल्स सर जैसे फॉर एग्जांपल टाइल्स कंटेनर में आते हैं, तो मैं उसको हर फ्लोर के लिए नहीं मंगा सकता, मेरे को लॉट्स में मंगाने पड़ते हैं। सो वी डिफाइन द नंबर ऑफ लॉट्स दैट वी आर गोइंग टू ऑर्डर हियर। 4 लॉट में टोटल पूरी बिल्डिंग का ऑर्डर होगा, और वो 4 लॉट पूरे के पूरे यहाँ पर एग्जीक्यूशन, इंडेंट कब होगा, ऑर्डर कब होगा, डिलीवरी कब होगा, ये पूरे के पूरे मैप्ड है यहाँ पर। फ्लोरिंग का पूरा ये ओपन टेरेस, अबव रूफ सिविल वर्क। वाओ, ये क्या क्या एक बार बताते जाओ सर। ये अब जैसे ये अबव रूफ में हार्डस्केप के, दिस इज स्टिल लिटिल वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसमें कंप्लीट लॉट वगैरह नहीं दिखा हुआ, बट एवरी लिटिल आइटम जो भी वहां पर लगेगा, फॉर एग्जांपल एडेसिव आल्सो, इफ आई कैन पॉइंट आउट, एरल्डाइट एडेसिव जो वहां पर लगेगा, वो भी वहां पर वो मैप किया जाएगा। प्लम्बिंग्स में सर देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स, लाइक ऑल दीज आइटम्स, छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, सारे छोटे आइटम्स मैप होते हैं। Now I'll give you a brief background why and how we are able to map this. Sir, in every project, one of the floor, जो first floor जो भी finishing का काम होता है, या जो भी किसकी कोई भी चीज का काम होता है, that we treat as a mock-up floor. We do that floor in as much detail as possible. जितना टाइम लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक छोटे से छोटे आइटम, एक छोटा से छोटा टाइम भी उसमें मॉनिटर किया जाता है कि इस फ्लोर को करने में मेरे को कितना टाइम है, कितना मटेरियल लगा। That becomes a benchmark for the rest of the floors for us. आपको मालूम है कल का क्या ऑर्डर था? Sorry? कल का क्या ऑर्डर था आपको मालूम है? सर मेरा एक फ्रेंड है जो मेरे साथ क्रिकेट खेलता है, कल उसने बोला कि आपके ऑफिस से मेरे पास 3 ऑर्डर आए थे लास्ट वीक। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। मैं कह रहा हूँ मगर आपको मालूम है ये ऑर्डर जो जलते हैं एक बार, कल, आज क्या तारीख है और कल क्या तारीख हुई की? आज 19 तारीख की है आपके पास इसमें डिटेल? नहीं सर, मतलब नॉट नेसेसरली एवरी डे का नहीं होता ना इसमें, तो जिस दिन डेट आएगी उस दिन वो हाईलाइट, अगर इंडेंट नहीं होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अच्छा, तो वो हर रोज का जो काम है वो सब निकलता रहता है। जी, यहाँ पर ये पूरी डेट, जैसे फॉर एग्जांपल सर यहाँ देखोगे आप, ये 15 जून को मेरे को एग्जीक्यूशन करना है ये,
ये 12 mm प्लाई का आप देखेंगे तो इसका इंडेंट डेट 1 जून को होगा, और हाँ इसका इंडेंट डेट 1 जून को होगा या 6 मई को होगा, ये भी ऑलरेडी यहाँ मैप्ड है। तो मेरा not 2 weeks, 3 weeks, not 3 days, it's planned for the whole project. So once this is made, there is nothing, I mean, there's no major change which happens in these sheets as far as following up of the work process is concerned. इस शीट के हिसाब से काम चलता है? Yes, sir. वेरी नाइस, ओके ग्रेट। स्कोरिंग आती है ना सर इसमें सबकी, तो ऑटोमेटिकली इसमें शीट के हिसाब से काम हो जाता है। और इसके साथ कैश फ्लो मैप है पूरा? हाँ सर, कैश फ्लो में मैं आता हूँ अब। दैट इज समथिंग दैट इज वेरी यूनिक दैट वी हैव मैप्ड। कैश फ्लो तो हाँ वैसे मैप्ड है, बट मैं जो बनाया हूँ ये आपको बता देता हूँ। सो सर दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ मंथली फाइनेंशियल स्टेटस। इसमें ईच एंड एवरी बजट का जो भी मेरा एस्टिमेटेड क्या है, इनकर्ड क्या है, बैलेंस क्या बचा हुआ है, ज्यादा लगा कम लगा क्यों लगा, इन सब की पूरी मॉनिटरिंग ऑन अ मंथली बेसिस हो जाती है सर। जूम इन करना, तो हर महीने की मॉनिटरिंग पूरे प्रोजेक्ट्स की हो रही है? हाँ सर, इसमें मैं आपने पहले बताया था, सो आई विल टेल एवरीवन, आई वाज फाइटिंग विद राहुल सर द होल टाइम फॉर गुड 3 years कि सर रियल स्टेट में मंथली प्रॉफिट्स नहीं निकल सकता। एंड सडनली ड्यूरिंग ASP लास्ट ईयर, आई डोंट नो व्हाट ट्रिगर्ड, whatever came to my mind, it triggered, and now we are able to monitor our monthly profits every single day. I mean every single month is, I mean, हर we are महीने able का to- प्रॉफिट निकल आता है प्रोजेक्ट्स का? yes sir, yes sir, प्रोजेक्ट्स का? yes sir। तो ये एक मिनट ये दिखाओ जरा, ये पाइल का है एस्टिमेटेड कॉस्ट, इनिशियल बजट, फाइनल बजट, इनकर्ड कॉस्ट, बैलेंस पेंडिंग। sorry, ओके या सो yeah, ये हर चीज का निकल आता है आपका? हर चीज का, every single item, every single budget head जो हमारा, जिसको हमने ग्रुपिंग करके रखा है ERP में, वो यहाँ पे आ जाता है। और ये सारा डेटा सर ERP से लिंक्ड है, ये सारा डेटा ERP से यहाँ पर आता है, यहाँ पर आके हम उसको एनालाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये सारा का सारा अब आप पूरी गूगल शीट्स पे आपका सारा का सारा काम, मतलब फ्रंट एंड पूरा इसी पे चल रहा है ऑन ऑल ऑफ दिस? जी सर, आपने कैश फ्लो का बात किया था सर, सो दिस इज द कैश फ्लो आल्सो दैट वी हैव। ये एक्चुअल क्या है और एस्टिमेटेड क्या था, ये पूरा का पूरा कैश फ्लो, मंथली कैश फ्लो भी यहाँ पर आ जाता है। हर एक सर इसमें बहुत अच्छी चीज की थी हमने कि चल रहा है। इसमें क्या हम, सॉरी सर, ये फरवरी का भी चल रहा है, बुक्ड प्लस एस्टिमेटेड। ये मैं समझा देता हूँ एक बार सर। हमारे जब से सेल्स हो रही हैं, सो जितने सेल्स हो गई हैं वो हमारे बुक कस्टमर्स हैं, उसमें से जो मेरा कैश फ्लो आना है, जो नहीं आना है, जो मेरी एस्टिमेटेड सेल्स है कि इस महीने में मेरे फॉर एग्जांपल 10 फ्लैट बुकिंग होंगी, तो उस अगर वो 10 फ्लैट बुकिंग होंगे तो उसमें से कितना कलेक्शन आएगा वो भी दिया हुआ है। तो मेरे पास एक्चुअल कैश फ्लो भी है जो बुक के हिसाब से, मेरे पास एस्टिमेटेड भी है जो मेरे सेल्स के टारगेट्स के हिसाब से है। वेरी नाइस, very nice. But this is one sheet which I am really proud of. Sorry, this profit statement sheet. इसमें सर every month का we are able to identify कि मेरा profits कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। Very nice. I mean this is something which we never used to do. I used to think कि ये हो ही नहीं सकता, but somehow we got a way out कि भाई this is how we can monitor profits each and every month. Very nice. Brilliant. So Really. I mean, I'm proud to say this. I mean, estimated profit was 5.6. We have increased to 10 now for one project. Really good. Really good. Yeah. हर महीने का निकलता है मतलब, और ये सारी शीटें ऑटोमेटिक चलती रहती हैं? ये सारी शीटें 95% ऑटोमेटिक है, 5% वो मंथ के एंड पे कुछ एक करना पड़ता है इसमें। आपको तो घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, आई जस्ट सी द रिजल्ट हियर। मेरा जो आपने जो बोल, हाँ, तो ये कैसा, जो एक सॉरी बोलिए सर। ये कैसा है कि आपको अब घुसने की जरूरत नहीं पड़ती और अपने आप चल रहा है सब कुछ? सर प्रोसेस तो डिफाइन हो गया ना। once a process is defined, whether I do it or my person do it, and doesn't make a difference there. I mean ultimately जाके डेटा डालना है या डेटा कुछ एनालाइज करके वहां पर लिखना है, उतना ही काम बचा है। So I invest all my efforts only into analyzing the sheets on one day of every month that we had, I think alumni में कई बार बात हुई है।
कि one day in a month I sit with all this profitability sheets और मेरा MFS को लेके different projects के different MFS को लेके कि क्या status अभी है, Great. कहाँ हमने increase किया, कहाँ हमने increase नहीं किया. And let's have a look at some sales भी system पे डाला हुआ है कि sales का system नहीं है, sales का system है? Sales का भी system है sir. Should I show you the reports that we analyze every month, every week? दिखा दो sales का वो FMS दिखा दो जो basic system चल रहा है. सेल्स FMS तो सर ये है, सेल्स FMS तो इसमें एक बुकिंग रिसीव होने के बाद में क्या क्या स्टेप्स होते हैं कि बुकिंग, फिर वो डॉक्यूमेंट HO पे आता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, जस्ट इन केस इफ दिस इज नॉट राइट देन वी सेंड इट बैक, देन चेक डिपॉजिट होता है, चेक कंफर्मेशन आता है, बुकिंग कैंसिलेशन, बुकिंग जनरेशन होती है, Okay, बुकिंग and अप्रूवल. what about before booking? Yeah, so before booking I'll just show you once. So before booking there are several reports here. Funnel report हम करते हैं कि भाई site visit कितना हुआ, booking कितना हुआ है for every source जहाँ से भी हमें leads मिलती है. So that is monitored every single week here. In percentage also reports आ जाते हैं. There is a lead calculator that we use every month. वो lead calculator में कितनी leads हमें चाहिए नहीं चाहिए, estimate कितना है, actual कितना है, वो सारा monitor हो जाता है. एक मिनट दिखाओ ये क्या है, what is this is? This is a lead calculator sheet, sir. इसमें क्या कैलकुलेट होता है? So ना मतलब मेरे को बुकिंग अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 बुकिंग चाहिए तो 7 बुकिंग्स के लिए मेरे को कितनी लीड्स चाहिए? फॉर एग्जांपल इन जुलाई ओनली वी एस्टिमेटेड दैट वी नीड 7 बुकिंग्स इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और ये परसेंटेज हमने फाइनल कर दिया, ये परसेंटेज फाइनल कर दिया, उसके हिसाब से साइट विजिट कितनी होनी चाहिए और नंबर ऑफ लीड्स कितनी आनी चाहिए ये डिसाइड हो गया था. तो एक्चुअली उस टाइम पे जुलाई में फिर हमारा ये 415 लीड्स आई थी, 59 साइट विजिट हुई थी, एंड अल्टीमेटली वी गॉट द number of bookings which we had required, 7. So this is what we monitor on a broader scale. Very good. Yeah. And let's go back to your sales funnel. वो जो कहाँ से इंक्वायरी आ रही है वो सब मैप आउट हो रही है? हाँ. Every inquiry. Every inquiry. There are different sheets here. Now, मतलब कितना मेरा प्लान था, कितना एक्चुअल आया, क्या डिफरेंस हुआ फॉर एवरी सोर्स लाइक फेसबुक, एडवर्ड्स, 99 acres, हाउसिंग. जूम मीटिंग्स हम पहले करते थे, अब तो जूम मीटिंग सर नहीं हो रही है उसमें, बट होर्डिंग से, एडवर्ड्स, SEO से कहाँ से कितनी इंक्वायरी आ रही है, दिस ऑल आर मैप्ड हियर. एक एक इंक्वायरी मैप होती है पूरी? एक इंक्वायरी मैप होती है सर. वो तो एवरी मंडे, दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई एम इन्वॉल्वड इन राइट नाउ. इन्वॉल्वड इन द सेंस देयर इज जो मंडे ऑपरेशनल मीटिंग्स होती है कि क्या इंक्वायरी टू लीड रेशियो क्या आया, लीड टू साइट विजिट रेशियो क्या आया. दिस इज द ओनली थिंग that you know that takes my 1 hour or 1.5 hours. Yeah. इनकी फॉलोअप की शीट है? इनकी फॉलोअप तो सर ERP में होती है ना पूरी की पूरी वो. ठीक है. Okay, so let's close this for a minute. Okay. Do I need to stop sharing? Yes. Share. Yep. Okay, so net of net, what are the results you got out of attending the entire BMP program? उस पहले आप एक प्रोजेक्ट करते थे, अब कितने कर रहे हो? So sir, as far as results are concerned, पहले सिर्फ एक प्रोजेक्ट एट अ टाइम करता था. In 2019, just after finishing the course, we immediately acquired 3 more projects that time only. That means in terms of value, if we see, then we were doing somewhere around 5 times or 6 times, 5 times the work. And in terms of number of projects and the area in those projects, we were doing 3 times the work immediately after BMP.
obviously COVID के कारण sir we you know we were you know 1-1.5 साल हम पीछे हो गए because of the clearances issues government में offices में वगैरह वगैरह के लेके, but otherwise everything is back on track now. All the projects are running and it's growth. I mean it's a one day a week affair for me. I come to office only on Mondays. I mean, rest of the days I do come at times, but only for if I have some important meetings in place. अगर कुछ है. Otherwise, for operations, I mean, it's just one day a week now. और अब साइट I mean- विजिट जरूरत पड़ती है? कई बार तो सर, I mean, जानबूझ के जाता हूँ कई बार तो कि भाई अब बहुत दिन हो गए, एक बार चक्कर लगा लेता हूँ घूमते फिरते. Otherwise it's not required at all because everything is there in the sheets. Nobody you know everybody want me at the site just to meet me, just to have some conversation. Otherwise it's not really required. Nobody needs my approval for anything. अब तो मैंने परचेज के अप्रूवल्स भी जो नॉन प्लान मटेरियल होते हैं वो भी अपने से ऑफलोड कर दिए हैं. I mean, I have made a system for that, but I don't approve 99% of the things now. Only if it's very high value thing, then only my approval is required. Otherwise, nobody requires my approval. So if my approval is not required, if I'm not involved in anything, then it's nobody requires me per se in the office. So right now, what are you saying is that earlier for one project, you were there doing one project at any one time, and you were Yeah. working how many days a week? I was working 6 days, 7 days a week. I mean, Sunday को भी there was some work or the other कि भाई चलो ये नया प्लॉट देख लेते हैं या there is some problem at the site, इसको जाके resolve कर देते हैं. Very good. और अभी So- आप कितना ग्रो कर गए हो वर्कशॉप के बाद? उसके बाद So yeah, in terms of value, if we talk about, then we have grown 5 times. So there is no, I mean, grown 5 times because we don't invest in land anymore. We only get into joint venture deals now. People have been very, very kind to us also in the way we have worked in the last 3-4 years. People now, I see a lot of people coming to me for the projects rather than me going to them for the projects. So this is one big transformation that has definitely happened. It's definitely because of all the systems and the time that I'm able to give, to something else other than my own operations. So and projects पहले कितना टाइम लगाते थे, अब कितना टाइम लगाते हैं? लेट्स से पहले कितने स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट करते हो, अब कितने का करते हो और उसमें कितने? पहले सर 2,01,90,000 का स्क्वायर उस टाइम पे चल रहा था एट द टाइम ऑफ BMP, 1,90,000 के आसपास का. आज के दिन में वी आर डूइंग समवेयर अराउंड 5.5 to 6 lakhs square feet of project. And if we talk, maybe 2 months or 2-3 months down the line, then I'll be sitting at somewhere around 18 lakh square feet worth of projects. Yeah. 18 लाख? जी सर. 2 लाख से 18 लाख पहुंच जाओगे? I mean, ये तो obviously आप ही की देन है. आपने 2x के हटा के 4x करवा दिया. So, yeah, see, I mean, I will definitely, I would like to just tell everyone, I might be jumping onto this, but whatever has happened, whatever transformation that has happened in my business with me, he is the only person who is responsible for it, Rahul sir. The kind of path and vision that I never had. Maybe capability was there, but never had the vision. पता ही नहीं था ना कि भाई इस तरह से भी काम हो सकता है. So it was all because of him that, and I'm really, really grateful to Rahul sir. एक एपिसोड को और बता देता हूँ, आप उस पर आओगे उससे पहले. ये जो मेरा 3 प्रोजेक्ट्स मैंने एक्वायर किए थे 2 लाख से 6 लाख स्क्वायर फीट में पहुंचा था, that also was because of him. I was fortunate enough that he used to come a lot to Calcutta for his workshops. And I was fortunate enough to sit with him in a cafe for a discussion every time. So one fine evening, he suddenly had a pep talk. कि कैसे grow कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. And within a span of 3 months after that, with no real extra investment, no debt, we increased to 3 times of the work that we were doing in just about 2 months' time. So, I mean, grateful to that pep talk. I can't forget that pep talk ever. But yes, that's what really changed everything for me. Very nice. Excellent.
और अब ये सारे प्रोजेक्ट्स, पहले 2 लाख स्क्वायर फुट खत्म करने में कितना टाइम लगता था, अब 2 लाख स्क्वायर फुट खत्म करने में कितना टाइम लगता है? So as I said, sir, we never were, delay कभी नहीं हुआ हमारे कोई भी projects में आज तक. But at that time हम एक single project कर रहे थे, अब हम multiple projects कर रहे हैं. But now we are not even delivering on time, we're delivering before time. So even though our targets are, say, possession का target, for example, say December 23 है, our internal targets is June 23 and we will finish by June or July. So we are finishing every project before time. It's not the finishing which matters here, sir. Possession तो time पे देना ही है. It's the sales which matters. Sales पहले project end होते होते तक 10, 15, 20 flat बच जाते थे, which is okay in our industry कि भाई project complete हो गया, 10, 15 last के flat बचे, which is okay. Now we are selling far ahead of the handing over the project. So एक project जो भी मेरा दिसंबर में handover होना है, in that we have already sold 95% of the flat, 92% of the flats, 8% are left. So एक project जो हमने नवंबर में launch किया था, this November, last November only, in 3 months time we have sold 50% of the units that we had launched, and not a brick has been laid at the site till now. Not even a single brick has been laid at the site till now. So Very nice, so very this is what has changed. It's the time पे चल रहा था, पहले भी चल रहा था, but the sales की जो speed है, sales का जो पूरा paradigm shift हुआ है after ASP and after BMP, that has completely changed everything for us. Really good, Ji, really good. Awesome. Really nice and amazing. So guys, can we all unmute and just thank Saurabh for taking your time? I had Thank you, Saurabh. Thank you, Saurabh. Wow. Thank you, Saurabh. Thank you, Saurabh. Thank you. Thank you, Saurabh. Thank you, Saurabh ji. Thank you for coming. Amazing to hear your Saurabh, story. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Saurabh. you, Saurabh ji. Really Can very you- nice. Amazing, Saurabh ji, amazing, amazing. Thank you, Saurabh. सर एक Thank- चीज मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा राहुल सौरभ को, ये कि सौरभ ने एक बार भी पूरी कॉन्वर्सेशन में मैं या मेरे को नहीं बोला, हमेशा हम, अस, वी, दिस इज व्हाट आई नोटेड एट लीस्ट. very nice. Ji, very nice. Thanks so much, Thank you, everyone. Saurabh. It's a pleasure to be, coming to this workshop and sharing in front of 553 people. I mean, हमारे सामने भी लोग आते थे. That time we used to dream कि भाई someday we will also, go and do our sharing. So thanks so much, Rahul sir, for giving me this opportunity. Really grateful to you. Really nice. Ji. Thank you so much. Mr. Saurabh, detail, contact number and details. Thank you, Saurabh. Sorry, Thanks for somebody. sharing, Saurabh. Thank you, Saurabh. Thank you. ये पूछ रहे हैं कि आपका नंबर आ सकता है क्या, नंबर मिल सकता है क्या, हम बीच में कभी अगर कुछ हो तो फोन कर सकते हैं क्या? तो ध्यान से सोच के जवाब देना. But if you would like, you can put your number here, and people, if they want, they can get in touch with you, or they can WhatsApp you, and they can speak to you if they require. Anytime, sir. I've just posted my number. I'm freely available for anyone and everyone. I really enjoy having some conversation with regards to this. So no problems at all. Anytime you can call me up. No problems at all. Very This is a true example of having done BMP and just having the time to take care of other things. So amazing. I mean, it's a learning process for me as well. So it's not a one-way traffic. Awesome. good. Thank you. Great. Excellent. Thank you. Saurabh, I'm very inspired by you. Thanks for sharing everything. It's really amazing. Really amazing. Just one more thing, sir. I will try to. जो भी sir बोल रहे हैं, please आंख बंद करके follow कर लीजिए. I made this mistake in the first 3 months of my BMP. I did not follow one particular thing, and I wasted a couple of my 4 AMs, which was very precious to me at that time. Still is. So just I follow him blindly. Whenever we have a conversation, कुछ suggestion आता है, I just follow him blindly whatsoever. I am a BMP, I am a ASP and a digital marketing graduate from his BCI. So I've done virtually all the big courses whichever he has. So Okay, please great. follow. Awesome. Thank you so much. Thank you, Saurabh. Thanks for being here. And especially thanks because मैंने कल रात को फोन किया सौरभ को, मैंने कहा क्या कर रहा है, आजा कल शेयरिंग के लिए आजा. And he said, मैं तो वैसे ही वेला हूँ, आ जाता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, I'll come, time is not an issue. Great.
Thank you so much. Thanks, Saurabh. Thanks everyone. Thanks, sir. Bye Thank bye. you. Bye-bye, Saurabh. Thanks. Bye-bye.